नाउ अब देखो, हम लोग सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम लोग का लाइफ में सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव थोड़ी है कि गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और हेलो वर्ल्ड और ये सब प्रिंट करना. देयर आर अ लॉट ऑफ more complex tasks which I want to achieve while I do programming. So my programs will involve data, right? It will involve transferring of data from the user, displaying data to the user, taking data from the user, so on and so forth. बिना डेटा के तो प्रोग्रामिंग कुछ कर ही नहीं सकते, राइट? इट इज ऑफ नो मीनिंग. तो अब जो डेटा का हम लोग एक्सचेंज करेंगे यूजर से, तो वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? Where will that data be stored? कौन कुछ गेस तो करो. अरे कुछ बोलो ताकि मुझे लगे कि तुम लोग सो नहीं रहे हो. Come on. वो डेटा कहाँ स्टोर रहेगा? मेमोरी में. कंप्यूटर का मेमोरी में स्टोर रहेगा और तो कोई जगह है नहीं. सो नाउ ये डिसाइड हो गई कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करना है. व्हाट नेक्स्ट? तो अब कंप्यूटर का मेमोरी में स्टोर तो करना है, लेकिन आवर डेटा इज नॉट ऑफ वन टाइप, राइट? माई डेटा कैन कंटेन नंबर्स, माई डेटा कैन कंटेन कैरेक्टर्स, माई डेटा कैन कंटेन डेसिमल नंबर्स, इट कैन कंटेन वर्ड्स, सेंटेंसेस एक्सेट्रा. बहुत सारे वेराइटी ऑफ डेटा अवेलेबल है, राइट? तो अब और हर एक डेटा का अपना कुछ मेमोरी रिक्वायरमेंट होगा, राइट? So how am I supposed to determine that which data has which, or which data will take how much of memory? That I need to tell the compiler also, because again compiler खुद का कुछ दिमाग नहीं है. तो जो मैं compiler को बोलूंगा वो उसी हिसाब से काम करेगा. So I need to tell the compiler that okay, I need to store an integer value, so allocate these many bytes for me. Everybody understands the meaning of byte, B-Y-T. So it is 8 bits is 1 byte, so generally byte is the unit of memories which we take in a computer. Okay. Now suppose I completed my engineering और मेरा जॉब लगा बैंगलोर में, तो मैं बैंगलोर गया. अब वहां जाके मैं सड़क पे तो नहीं रहूंगा. आई नीड अ फ्लैट टू स्टे. सो सपोज इफ आई गो, देखो मैं एकदम इसको रियल लाइफ से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये एग्जाम्पल हमेशा याद रहे. So now if I go and suppose कोई एक मुझे apartments दिखा, तो now if I go to the apartments manager and I tell कि I want a flat, तो he will look like a potato कि ये क्या बोल रहे हो? It is such a vague statement that I want a flat. I have not specified that I want a 1 BHK flat or a 2 BHK flat, and I have not specified the different details कि मुझे किस टाइप का फ्लैट चाहिए. सिर्फ मैं बोल रहा हूँ मुझे रहने का एक जगह दे दो, तो ये थोड़ी ना समझ आएगा, नहीं समझ आएगा, राइट? सिमिलरली इफ आई टेल टू द कंपाइलर दैट आई वांट अ मेमोरी, आई वांट टू स्टोर माय डेटा, आई वांट अ मेमोरी, तो कंपाइलर विल बी लाइक क्या है ये? यू टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा है, वेदर इट्स अ इंटीजर, वेदर इट्स अ डेसिमल, कि वो वर्ड है कि कैरेक्टर है कि क्या है, वो मुझे बताओ, तब तो मैं उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट करूंगा. So that is called a data type. Okay. अच्छा, before I talk about data type, let me tell you something about variables. तो variables क्या होता है? Variables are those memory locations which I book in order to store my data. Okay. So यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है कि सपोज एक बहुत बड़ा बीच है, उस बीच में if you dig a hole, so it is like storing variables there. So variable declaration मतलब क्या होता है? You are telling or you are conveying this message to the compiler that I need a memory location where I want to store a data of this type, right? अब वो type क्या है वो हम लोग देखेंगे. So when you declare a variable, you are telling the compiler the kind of value the variable may hold. Basically, it's data type. Okay. Now. Once you have declared, you cannot change the type of the variable. मतलब तुम एक बार चले गए कि हम 2 BHK में जा रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि तुरंत उसको बोलेगा नहीं 1 BHK करो उसको. That is not possible. So you cannot change the data type of the memory which you have allocated. Okay. So what are the common data types which we use? We use int, float. So int is used for integer whole numbers, right? And it takes usually 4 bytes of memory.
ठीक है. Then we use a float variable. So float variables are used for decimal numbers, to store decimal numbers. They also take 4 bytes. जो डबल है वो क्या है, डबल इज ऑल्सो डेटा टाइप यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स, लेकिन डबल का रेंज ज्यादा है, फ्लोट से थोड़ा बड़ा होता है वो, सो इट कैन अकोमोडेट लार्जर नंबर्स, सो इट टेक्स 8 बाइट्स इन द मेमोरी. कैर इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप. तो जैसे एक कैरेक्टर हुआ ए या @ या डॉलर, उस तरह का कुछ भी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज होता है, एंड इट टेक्स 1 बाइट इन द मेमोरी एंड इट इज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स. ये हम लोग देखेंगे when we will run the program. So what is the data type, did you understand? And why do we need it? We need it in order to convey the message to the compiler that I need memory for this type of data. तो वो उस हिसाब से allocate करेगा. जैसे अब now you can understand, अगर मुझे decimal number चाहिए तो मैं float बोलूंगा, अगर मुझे character चाहिए तो मैं char बोलूंगा, तो वो अपने हिसाब से allocate कर देगा, right? So this is the basic syntax of declaring a particular variable. So if I write int length, so सबसे पहले we need to give the data type and then we need to give the variable name. अब variable name can be a name of my choice or the programmer's choice. वो उसमें compiler का कोई लेना देना नहीं है. You can have any name you want. There are some basic rules which you need to follow, that the variable name should not start with a number. मतलब I cannot name a variable like one Aditya. I cannot name that. So your variable name should start with an alphabet. But बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यही नाम देना जरूरी. You can name anything. But it is always advised that you give meaningful names. अब जैसे अगर सपोज तुम एक प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें एक स्टूडेंट का मार्क्स एंटर करा रहे हो, तो उस मार्क्स को जिसमें स्टोर करोगे उस वेरिएबल का नाम मार्क्स देना या स्टूडेंट मार्क्स देना थोड़ा मीनिंग है. अब उस वेरिएबल का नाम हम बफेलो दे देंगे तो it doesn't make sense, right? I can do it, but that is meaningless, right? So it is all. तो तुम भी जब प्रोग्राम बनाओगे तो तुम्हें भी easy होगा to deal with that. So it is always advisable to give meaningful names to your variables. Okay. This is the syntax to declare a variable. Int length. So int is the data type, and length is my name of the variable. तो जैसे ही मैं इस तरह कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूं तो क्या होता है, कंप्यूटर का मेमोरी में मेरे लिए एक ब्लॉक बुक हो जाता है विद दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप, और उसमें मैं वैल्यू डाल सकता हूं. क्लियर? सो व्हाट आर द रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स? एज आई वाज टेलिंग, इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर, देन इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. तो और कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें अलाउड नहीं होता, सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड होता है. It can be up to 31 characters long, and it cannot match with a key keyword. Now, what is the keyword? Any guesses? What is the keyword? What do you understand by a keyword in C? Preloaded. The significant words which can describe the functions or something which is already given in the language. Yes. So it means that keywords are those words that carry a specific meaning, right? So suppose if I write 2 words DL, तो ऐसे तो DL बहुत कुछ denote करता है, Duckworth Lewis method, driving license. But when that DL is present on a car's on a vehicle's number plate, तो वो क्या specifically denote करता है कि that car is from Delhi, right? So C में भी कुछ कुछ keywords होते हैं जिसका खुद का एक specific meaning होता है. Okay? Now these are some of the C keywords. Of course I won't tell you to memorize each of them, because you will eventually come to know about each of the keywords when you write programs. In fact कुछ कुछ keywords तो हमने अभी तक देख ही लिया. Int, then float, main, all these keywords we have already seen up till now, and we will see a lot more. So no need to memorize this. Okay, you don't have to memorize this. बस यही ध्यान रखना कि I cannot name variables based. तो अब मैं कोई ऐसा variable नहीं बना सकता int. I cannot name a variable int because that has a specific meaning. तो वो उसी context में use होगा.
बाकी तुम्हें जो वेरिएबल का नाम बना सकते हो. ओके, so these are some of the valid variable declarations. So int, num, lots, double, width 1, so on and so forth. Now if you want to declare more than one variable of a same type, तो तुम्हें बार बार int a फिर int b नहीं लिखना जरूरत है. तुम्हें you can write int a, b, c, लास्ट में बस एक सेमीकोलन दे देना. So this is a short way of declaring more than one variables of the same type. Of the same type. Clear? Any doubts? Okay. You can use printf to output variables as well as strings. So now if I want, तो अभी हमने अभी तक क्या प्रिंट किया है? Only the message which I want to print to the user, but generally ऐसा तो होगा नहीं. We also want to input some data to the user also. सपोज मैंने कुछ प्रोग्राम में बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया है, तो उसका जो फाइनल आंसर आया, आई वांट दैट टू बी शोन टू द यूजर, राइट? तो वो मैं यूजर को दिखाना है तो प्रिंट स्टेटमेंट से ही दिखाऊंगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट से. तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में हाउ टू प्रिंट अ वेरिएबल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो हियर सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस वेरिएबल नम लॉट्स का जो वैल्यू है वो मुझे अगर प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन में. सो हाउ एम आई सपोज टू डू? आई एम इन ओपनिंग माई कोट्स के अंदर में क्या लिखा? देयर आर, ये परसेंटेज डी क्या है? व्हाट इज दिस परसेंटेज डी? दिस परसेंटेज डी इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टर. एंड ये क्या करता है? दिस डिनोट्स दैट देयर विल बी एन इंटीजर वैल्यू विच विल बी सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ परसेंटेज डी. और वो वैल्यू कहां से आएगा वो हम यहां स्पेसिफाई करेंगे. सो व्हाट दिस स्टेटमेंट विल डू इज, ये परसेंटेज डी के बदले नम लॉट्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. सो दिस विल गिव मी द आउटपुट, देयर आर 10 लॉट्स. इज दिस क्लियर? वील ऑब्वियसली डू दिस ऑन द एडिटर नाउ, बट कैसे हो रहा है काम ये समझ में आया? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस परसेंटेज डी? डिड यू अंडरस्टैंड? सो सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम ट्राइंग टू प्रिंट 2 वेरिएबल्स. तो चाहे मुझे जितना ही वेरिएबल बनाना हो, जितना ही वेरिएबल प्रिंट करना हो, आई जस्ट गिव द डिस्क्रिप्टर्स करेक्टली. तो एक परसेंटेज एफ का जो डिस्क्रिप्टर है, दिस इज फॉर फ्लोट्स, दिस इज फॉर प्रिंटिंग अ फ्लोट वेरिएबल. सो परसेंटेज एफ करूंगा मैं, तो यहाँ क्या है देखो, नम लॉट्स कॉमा टोटल एरिया. तो नम लॉट्स विल गेट सब्स्टिट्यूटेड देयर एंड टोटल एरिया विल गेट सब्स्टिट्यूटेड हियर. क्लियर? So let's try to run this particular code. So let's try to do a small program in our editor. तो ऐसा करते हैं, यूजर से 2 नंबर इनपुट करवाते हैं एंड उसको एक बार प्रिंट कराते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल कोड. लेट्स एंटर 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देम ऑन द आउटपुट स्क्रीन. वेरी सिंपल कोड. लेट्स ट्राई टू डू दैट. तो इस हेलो सी में ही मैं काम करता हूं. लेट मी रिमूव दिस. सो फर्स्ट टाइम, अच्छा, यूजर से इनपुट कैसे लेना है वो अभी तक हम लोग नहीं सीखे. तो अभी एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट टेक 2 वेरिएबल्स. एक इंट ए ले लेते हैं जिसमें 10 स्टोर करते हैं, और एक फ्लोट एफ ले लो जिसमें 5.25 स्टोर कर दिए. ओके, नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट दीज 2 वैल्यूज, तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ. सो इंटीजर इज परसेंटेज सी एंड फ्लोट इज So I'll be giving this slash n almost every time so that the output comes a bit neater. Okay, so slash n का काम we know, right? So this is the very simple piece of code which we write. Type it out जल्दी से. And this is the output of the code.